Today, we are truly pleased to have with us Chief Guest of the Day, Honorable Dr. Digambar Zawar Sir, Chairman, Kamla Group of Companies, Palghar, Mumbai. I heartily welcome you, sir. We also have with us our guest of honor, Dr. Pranita Gujarati ma'am, family physician from our very own Nasik. Heartiest welcome, ma'am. I also extend my warm welcome to revered personality, Dr. R.P. Deshpande sir, President, Gokhale Education Society. I also welcome our mentor, Shri S.M. Gosavi sir, Director Establishment, Gokhale Education Society. I also welcome respected principal sir of our college, Dr. S.V. Amrutkar sir, who is also chairman, Board of Studies, Pharmaceutical Chemistry, Savitribai Phule, Pune University. I also welcome our special guest, Dr. Pushkar Zawar sir, Director, Kamla Group of Companies, Palghar, Mumbai. I also welcome the worthy members of Spectrum Board, all the revered professors, supporting staff, and of course, our valued and starling audience. I also welcome Katkade sir, Professor, Gokhale Education Society, MS Gosavi College of Pharmaceutical Sciences. I also thank all the dignitaries for adorning this auditorium with their gracious presence. Thank you so much. तू बुद्धि दे, तू तेज दे, नवचेतना विश्वास दे, जे सत्य सुंदर सर्वथा अजन्म त्याचा ध्यास दे. Now I request all the dignitaries to proceed with the auspicious lamp lighting ceremony. सिद्धिर्भवतु मे सदा. Thank you all. Now I request all to stand and honor the society Geet. Education
I kindly request our principal, Dr. S.V. Amrutkar, sir, to give inaugural address and introduce our guest. Please, sir. A very good morning and warm welcome to Dr. R.P. Deshpande, sir, President of today's function. Dr. D.J. Zawar, sir, Chief Guest of today's function. Dr. Pranita Gujarati, Madam, Guest of Honor of today's function. And we also have a special guest, Dr. Pushkar, Vice Principal, Dr. Prashant Pingle, Katkade Sahib, all my staff colleagues and dear students. Today, we have gathered here to have a prize distribution function of our annual social gathering, Spectrum 23-24. Thank you so much, sir. Now I request Honorable Dr. R.P. Deshpande, sir, President of the function, to felicitate our chief guest, Dr. Digambar Zawar, sir. Now I request Dr. S.V. Amrutkar, sir, to felicitate special guest, Dr. Pushkar Zawar, sir, Director of Kamla Group of Companies. Now I request Dr. Digambar Zawar, sir, to felicitate Dr. S.V. Amrutkar, sir. Now I request Dr. Digambar Zawar, sir, to felicitate Dr. P.N. Katkade, sir. I now request our honorable chief guest, Dr. Digambar Zawar, sir, to guide us. Sir is going to present before us on the topic, opportunities and trends in pharmaceuticals worldwide. Please, sir. गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। आज के इस विशेष आयोजन पर विशेष रूप से उपस्थित इस कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर आर.पी. देशपांडे सर, इस स्कूल के प्रिंसिपल इस कॉलेज के प्रिंसिपल आदरणीय श्री डॉक्टर अमृतकर सर, विशेष अतिथि डॉक्टर प्रणीता मैडम, मेरे परम मित्र कातकाड़े सर, मेधावी छात्र गुरुजन और इस सभागार में उपस्थित सभी मान्यवर महोदय, आप सभी को नमन वंदन, जय श्री राम। आज के इस विशेष आयोजन पर मुख्य अतिथि के रूप में निमंत्रित करने हेतु जिन्होंने सुझाव रखा, अनुमोदित किया, उसे पारित होने दिया, उन सभी का हृदय से धन्यवाद। आपने मुझे निमंत्रित किया, सम्मानित किया, विशेष विभूतियों के साथ में मंच साझा करना, उनसे प्रत्यक्ष परिचित होना और इस प्रबुद्ध सभागार के समक्ष मेरे मंतव्य को अभिव्यक्त करने का अवसर दिया। आयोजकों का हृदय के असीम धरातल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके सामने एक डिस्क्लेमर रखना चाहता हूं। जिस विषय पर मैं यहाँ पर चर्चा करने आया हूँ, उस विषय की मैंने कोई औपचारिक शिक्षा प्राप्त की नहीं है। मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूँ, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर भी नहीं हूँ, ना कि मेरा यह दावा है कि मैं प्रसिद्ध एवं सफल उद्योजक हूँ। केवल जिज्ञासा, तर्कसंगत वैचारिक क्षमता, सामान्य ज्ञान से मैंने पिछले 30 साल में उद्योग व्यापार करते करते जो ज्ञान प्राप्त किया,
जो अनुभूति प्राप्त की वो आपके सामने संक्षिप्त में प्रस्तुत करूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ से जाते समय आप सभी लोगों का बहुत सारा प्यार, आशीर्वाद एवं इस मेधावी युवाओं से बहुत सारा ज्ञान लेके जाऊंगा, इसमें मुझे कतई शंका नहीं। मैं मेरी बात 2 चरणों में रखूंगा, मेरी जीवनी एवं फार्मा वर्ल्ड, और दूसरे चरण में सक्सेस मंत्रा। मुझे आयोजकों ने 50 मिनट का समय दिया है, तय सीमा में मैं मेरी बात को समाप्त करूंगा। आयोजक निश्चिंत रहे। धन और संपन्नता की खोज में 30 साल पहले मैं पालघर पहुंचा। ईश्वर की असीम कृपा से आज करोड़ों का दान पुण्य करने की क्षमता पाई। यह मेरा सफल सफर कैसा रहा, इसे जानने की आप सब लोगों को जरूर उत्सुकता होगी। मैं मेरी जीवनी, मेरे जन्म से आज इस मंच तक का मेरा सफर संक्षेप में आपके सामने रखता हूं। इसी जिले में 22 किलोमीटर पूर्व में छोटा देहात 3000 की बस्ती साईखेड़ा, तहसील निफाड़, यह मेरी जन्मस्थली। मेरा ननिहाल रेड क्रॉस सोसाइटी के छोटे से खोली में मेरा 1970 में जन्म हुआ। मेरी माताजी उनके माता पिता की इकलौती संतान, यानी मुझे मामा मौसी नहीं। बचपन बहुत खुशी से साईखेड़ा में बीता। प्राथमिक शिक्षा वहीं पर प्राप्त की। मेरा पैतृक गांव शेंदुर्णी, तहसील जामनेर, जिला जलगांव, यह भी छोटा सा देहात। यहाँ पर मैंने माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की। जिल्हा परिषद मराठी मुलांची शाळा, माध्यम मराठी स्कूल, घर से 3 किलोमीटर दूर, पैदल जाना पैदल आना। मुझे बिल्कुल संकोच नहीं कि ये बताते समय कि हम शुरू से धनवान तो थे नहीं, अर्थात आज भी नहीं हूं, लेकिन गरीब भी नहीं थे। रहने को सीमेंट कंक्रीट की पक्के मकान तो थे नहीं, लेकिन हम कभी झुकी बस्ती में भी नहीं रहे। मिट्टी का 10 बाय 20 का एक रूम, वही बेडरूम, वही किचन, वही हॉल। इसमें माता पिता और हम 5 भाई बहन खुशी से रहते थे। घर में फर्श नहीं, ट्यूब नहीं, फैन नहीं, स्टोव नहीं, आप फ्रीज नहीं, आप ये समझो कि मनोरंजन का कोई साधन नहीं, टीवी, ट्रांजिस्टर, रेडियो। बारिश के दिनों में काफ़ी फजियत होती थी, 10 जगह से पानी गिरता था, बर्तन रखने के बाद भी घर गीला होता था। गलियां भी कच्ची मिट्टी की, गलियां में कीचड़ होता था। लेकिन हम कभी दुखी नहीं थे, क्योंकि हम दुकानदार थे। आसपास के लोगों से हम धनवान थे, और विशेष हम लोग उस समय रोज चावल और गेहूं की रोटी खाते थे। अन्य समाज के लोगों को वो त्योहार को ही मिलता था। हमारी स्कूल भी इसी तरह, मिट्टी की स्कूल, फर्श नहीं, फैन नहीं, ट्यूब नहीं, खिड़कियों को कपाट नहीं, साफ सुथरा जलपान की कोई व्यवस्था नहीं, मलमूत्र की कोई व्यवस्था नहीं। ऐसे में हमारी पढ़ाई बढ़ती गई। 10वीं की कक्षा, एग्जाम सही, तहसील जामनेर, ये हमारा एग्जामिनेशन सेंटर। गांव से 30 किलोमीटर दूर एसटी बस से जाना, एक बस मिस हो गई तो 2 घंटे तक वहीं इंतजार करना। आप सब लोग जानते हो 10वीं का स्ट्रेस उस समय भी था, आज भी है। और एग्जाम्स के पहले की जो पढ़ाई होती है वो अत्यंत महत्वपूर्ण होती थी। हम तो आने जाने में ही थक जाते थे। 10वीं का निकाल लगा। 10-20 गांव में हमारी स्कूल एक थी, इसलिए छात्रों की काफ़ी भीड़ थी। 10वीं में 150 बच्चे परीक्षा में बैठे। हेडमास्टर ने सभी को एक हॉल में बुलाया और कहा, मैं इस चौक से इस ब्लैक बोर्ड पर जितने नाम लिख रहा हूँ वो
सब उत्तीर्ण हुए, अन्य सभी को अगले साल कोशिश करना है। और उस दिन हेडमास्टर ने केवल 15 नाम लिखे। 150 छात्रों में से 15 उत्तीर्ण हुए, 10% का निकाल लगा। इन दिनों में मुझे कई स्कूलों में मुख्य अतिथि के रूप में जाने का अवसर मिलता है, सौभाग्य मिलता है। वहाँ से वार्तालाप में जानकारी मिलती है कि कई सालों से उनके 10वीं कक्षा के रिजल्ट 100% लग रहे हैं। तो आप अनुमान करो उस समय शिक्षा का स्तर कैसा होगा। सौभाग्यवश हेडमास्टर ने 15 लोगों की सूची में मेरा नाम प्रथम क्रमांक पर लिखा। मैं उस वर्ष 10वीं कक्षा में प्रथम क्रमांक से पास हुआ। ऊंचे क्रमांक में जो छात्र उत्तीर्ण होते थे, उस समय 2 स्ट्रीम्स रहती थी, आप या तो इंजीनियर बनो या डॉक्टर बनो। डॉक्टर बनने का सपना लेके मैं नासिक पहुंचा। नासिक RY कॉलेज में 11-12 के लिए एडमिशन लिया। माहेश्वरी हॉस्टल पंडित कॉलोनी में रहता था। इस चरणपुर रोड से मैंने कई किलोमीटर साइकिल चलाई है। RY की कॉलेज की 2 शब्दों में याद बोलूं, एक तो मैं देहात से आया, मराठी माध्यम से आया, वो भी मराठी खानदेशी, इथून तो इथलोंग, और हिंदी तेकू मेकू कायकू। यहाँ पर कॉन्वेंट से इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स पढ़ाई करने आते थे, वो जो फर्राटेदार इंग्लिश बात करते थे, तो हमारा न्यूनगंड दिन ब दिन बढ़ते गया। काफ़ी उदासीनता आती थी, होमसिक हो गए थे, ऐसा लगे छोड़ के अपने गांव में जाऊं, वहीं पर 11-12 करूं। सुबह शाम ईश्वर की साधना हॉस्टल में रहकर, वहाँ एक औदुंबर का पेड़ था, वहाँ पर जल चढ़ाता था सुबह। ऐसा कहते हैं औदुंबर में दत्त भगवान का वास होता है। रविवार का अंजम एक मुखी दत्त प्रतिदिन दर्शन को जाता था। शाम को CBS के बाजू में हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ रोज जाता था। इनसे मेरा मनोबल बढ़ा, उत्साह बढ़ा, इससे उभरा। 11-12 में दिल लगा के पढ़ाई की। लेकिन MBBS को एडमिशन मिल नहीं सकी। PCB लिया था, उसमें 86% मिले। 89% को ओपन कैटेगरी में BJ मेडिकल कॉलेज की एडमिशन क्लोज हुई। मेरा वो अधूरा सपना मेरे बेटे ने डॉक्टर पुष्कर दिगंबर झंवर 28 साल बाद पूरा किया। वो आज इस सभागार में मौजूद है। तीन विकल्प थे। 1 साल का विश्रांति लेकर 12वीं की परीक्षा वापस दो, रुकना मना था। दूसरा विकल्प था डोनेशन देकर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को एडमिशन लो। ये चैप्टर तो हमारे सिलेबस में था ही नहीं। तीसरा विकल्प था कि डॉक्टर की अन्य शाखा में प्रवेश लो। इस हिसाब से RY के कॉलेज के मेरे ख्याल से 15, हम लोग प्रणीता भी हमारे साथ में थी, 15 बच्चे एक साथ आयुर्वेद कॉलेज, नासिक आयुर्वेद कॉलेज पंचवटी में जो है, वहाँ पर एडमिशन लिया। पढ़ाई पूरी हुई, डॉक्टर बने। सब लोगों ने अपने गांव में या आसपास नासिक की क्लिनिक डाली। मैं पढ़ाई के दौरान छुट्टियों में ठाना और मुरबाड़, ये जो ठाना जिला की तहसील है मुरबाड़ और शाहपुर, यहाँ पर अक्सर जाता था। वहाँ दोनों तहसील पर मेरे चचेरे भाई मेडिकल प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, उनकी क्लिनिक में देखता था। वहाँ पर जो रुग्णों की भीड़ लगती थी, अर्थार्जन भी बहुत अच्छा होता था। तो यह सब मुझे आकर्षित करता था। मैंने उसी समय तय कर लिया कि मुझे ठाना जिले की किसी और तहसील में जाके अपनी मेडिकल प्रैक्टिस करनी है। माता पिताजी की इच्छा थी कि मैं अपने गांव में मेडिकल प्रैक्टिस करूं। मुझे कंफर्ट जोन से बाहर जाना था, कुछ बनने की ख्वाहिश थी। उनके मर्जी के खिलाफ मैं शेंदुर्णी से पालघर ST बस से पहुंच गया। विरोध था, इसलिए 1 रुपया भी मैंने घर से लिया नहीं, ना उन्होंने दिया। पालघर में जाके क्लिनिक शुरू करने का, यानी सर्वे करने का, जगह ढूंढने का, लॉज और होटल में रुककर खाने पीने की व्यवस्था करके सर्वे करना नामुमकिन था। जेब में पैसे तो थे ही नहीं।
तो हमने साई कृपा नर्सिंग होम करके एक हॉस्पिटल है, वहाँ पर आरएमओ की जॉब की। 2000 रुपये तनख्वाह, रहने खाने पीने की व्यवस्था हो गई। सुबह शाम डॉक्टर को असिस्ट करता था, दोपहर में सर्वे करने निकलता था। 3-4 महीनों की मेहनत से एक मन पसंदीदा जगह मिल गई, ऑफकोर्स किराए से। वहाँ पर क्लिनिक शुरू करने के लिए छोटा बहुत फर्नीचर के लिए जो चचेरे भाई मुरबाड़ से थे, उनसे 10,000 रुपया उधार लिया और मेरा क्लिनिक 94 में शुरू हो गया। शुरू में बिल्कुल रुग्णों की कमी थी और फीस भी केवल 10 रुपया प्रति रुग्ण। काफ़ी उदासीनता आने लगी, निराशा आने लगी, ऐसा लगने लगा कि कुछ गलत तो स्टेप्स नहीं लिया। अपने अपने गांव में लोग पहचानते थे, वहीं रहते तो अच्छा रहता था। लेकिन उस समय मुझे श्री स्वामी समर्थ के चरित्र और श्री गुरु चरित्र, इनके अनंत पारायण किए, जप जाप किए, ऊर्जा आती गई और जादू जैसा कुछ अंतर मेरे क्लिनिक में आया। रोज 10, 20, 30, 40, 50 करते करते एक साल भर में मैं सेंचुरी मारने लगा, 100 पेशेंट्स पर डे देखने लगा। चचेरे भाई का 10,000 रुपया जो बकाया था वो चुकाया। 11 महीने का जो किराए का करार होता है, उसी दिन मैंने नया किराए का करार ना करते हुए उस जगह को खरीदी किया 3.5 लाख रुपए में। वो मेरी सबसे पहली एसेट जो मैं कभी भी बिकूंगा नहीं। 6 महीनों के बाद में मारुति फ्रंटी ली, जिसे पाना उन दिनों में धनवान होने की निशानी समझी जाती थी। 1.5 साल तक मैंने एक दिन भी दवाखाना बंद नहीं रखा, लेकिन 7 दिनों की विश्रांति ली। मारुति कार का प्रदर्शन करना था। पूरे महाराष्ट्र में मेरे जितने मित्र हैं और जितने करीबी रिश्तेदार हैं, उनके पास जाके आ गया, दिगंबर अभी धनवान हो रहा है। बाद में स्वयं की शादी, भाई बहनों की शादी की। क्लिनिक की सफलता के बाद मुझे कुछ और उद्योग करने की प्रेरणा हुई। डॉक्टर के लिए सबसे आसान उद्योग जो होता है, रिटेल मेडिकल स्टोर्स। मैंने बड़े भाई साहब को गांव से बुलाया, राजू दादा, और एक मेडिकल स्टोर शुरू की। राजू दादा ने आज तक किराना दुकान चलाया था। आप सब लोग जानते हैं कि डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन पढ़कर सटीक दवा देना बड़ा अनुभव का काम होता है, बड़ा जोखिम का भी काम होता है। उसे तो समझ आ नहीं रहा था। मैं सुबह शाम क्लिनिक चलाता, दोपहर में जाके उसको ट्रेनिंग देता था। भाग्यवश 6 महीनों में उसमें महिरत हासिल की। हमारा मेडिकल स्टोर बहुत अच्छा चलने लगा। अभी गांव में पापा अभी भी किराना दुकान चला रहे थे, राजू भाई का मेडिकल चल रहा था, मेरा क्लिनिक चल रहा था। 3 अर्थार्जन के स्रोत हमने खड़े किए। कुछ दिनों के बाद मम्मी पापा पूरे परिवार को स्थलांतरित किया। पालघर में एक फ्लोर हमने खरीद किया। हम वहाँ पर पूरे परिवार के साथ काफ़ी खुशी से रहने लगे। रिटेल मेडिकल की सफलता के बाद हमारी नज़र जाती थी होलसेलर्स पे। राजू दादा और मैं, और BYK में, मैं RYK में, और साथ में हम लोग हॉस्टल में साथ में रहे। 4 सालों का उम्र में अंतर होने के बाद भी बहुत अच्छे मित्र हैं। रोज रात में खाना खाने के बाद में नीचे 1 घंटे का चक्कर लगाने जाते थे। नवरत्न कीवाम का पान लेते थे, एक आधा वो खाता था, आधा मैं खाता था। पान पर चर्चा करते थे, एक ही एजेंडा, हमारे उद्योग व्यापार का विस्तार कैसे करें, आमदनी कैसे बढ़ावे। तो हमने रिटेल करते करते जो हमारी नज़र होलसेलर पर गई, तो हमने सोचा कि ये होलसेलर हमारे जैसे कितने मेडिकल स्टोर्स को दवाई देता होगा, कम से कम 500-1000 को तो देता होगा। इसका मतलब इसका व्यापार बढ़ा, उसकी आमदनी बढ़ी। तो हमने इस विचार से अपनी रिटेल मेडिकल बंद की, होलसेल शुरू किया। इसमें हमारा मुनाफा 5 गुना बढ़ गया। हम बहुत खुश हुए। जो मार्केटिंग कंपनियां हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आती थी, हमारी नजर उन पर गई। ये मार्केटिंग कंपनियां बनाती कितने में, बिकती कितने, इनका मुनाफा कितना होगा। थैंक यू। सौभाग्यवश पालघर यह एक औद्योगिक क्षेत्र है, वहां पर कई फार्मा कंपनियां कार्यरत है। माता सरस्वती का जी वहाँ पर वास रहा है।
वार्तालाप अच्छी कर लेता हूँ, तो मैंने सोचा जाके बातचीत करूँ, कुछ प्रोडक्ट बना के देखे, इसकी एमआरपी इतनी, बनता कितने में। जो वो गणित देखा था, हमारे आंखें खुली की खुली रहेगी, बनता कितने में, एमआरपी कितनी, बिकते कितने में। तो हमने अपने खुद के प्रोडक्ट्स अपने ब्रांड्स में बनाना शुरू किया। शुरू में 2-4 करते करते 70-80 प्रोडक्ट बनाए, टैबलेट, कैप्सूल, लिक्विड, ऑइंटमेंट, ऐसा एक पूरा बास्केट जनरल प्रैक्टिशनर्स के लिए बना के रखा। 2 एमआर रखे, पालघर क्षेत्र में मार्केटिंग शुरू किया, इसका विस्तार पूरे महाराष्ट्र में हर जिले तक पहुंचाया। कई एमआर रखे, कोई एबीएम, फिर वो आरबीएम, इस किस्म का नेटवर्क तरीका। ये बिजनेस हमको काफी रास आया। अच्छा पैसा इकट्ठा किया। इस बीच मैन्युफैक्चरर्स के पास आना जाना बढ़ गया। हमारी नजर वापस मैन्युफैक्चरर पे। ये मैन्युफैक्चरर हमारे जैसे मार्केटिंग कितने कंपनियों को बना के देता होगा, यानी इसकी व्यापार बढ़ा, इसकी आमदनी बढ़े। तो इस विचार ने हमें प्रेरित किया कि हम अपनी खुद की एक फैक्ट्री क्यों न शुरू करें। मार्केटिंग कंपनी को शुरू करना, चलाना और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को शुरू करना, चलाना 2 विभिन्न बातें। उसको लगने वाली जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, उसकी क्षमता भी हम में नहीं थी, और एक डर लग रहा था इतने दिनों में जो एक एक पाई इकट्ठा करके जो पूंजी जमा की है, अगर इसमें असफल रहे तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो हमने 5 पार्टनर्स को इकट्ठा करके एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी गठित की। तारापुर एमआईडीसी में एक प्लॉट आवंटित किया 2003 में। 2003 से 2004 में जो कंसल्टेंट हमारे बदले, तो उन्होंने बोला कि अभी तो जमाना WHO GMP का है, आपकी एक कंपनी इतने छोटे से प्लॉट में बनेगी नहीं। उन्होंने हमको बाजू का प्लॉट लेने लगा, और जब हमने दूसरा प्लॉट लिया एमआईडीसी से, वहाँ हम एमआईडीसी के चक्कर में आ गए। टेक्निकल जो अमलगमेशन की जो प्रोसेस होती है उसका हमें अज्ञान था। उस चक्कर में लोकल एमआईडीसी का ऑफिस, रीजनल मेडिकल का एमआईडीसी ऑफिस और हेड ऑफिस के चक्कर काटते काटते परेशान हो गए। उद्योग मंत्री जो एमआईडीसी के चेयरमैन होते हैं आदरणीय श्री अशोक जी चौहान की सहायता से अंत में हमें ओसी मिली। मंत्रालय जीवन में पहली बार देखा। सह्याद्री में जो मीटिंग थी वहां पर भी पहली बार गए। जो सह्याद्री का जो बहुत बड़ा विशाल हॉल है वहां पर हमें बुलाया गया, और हमें हमारे सामने एमआईडीसी के सीईओ होते कि भाई आपकी क्या कहना है, आप बताओ करके। 10 पन्नों का जो मैंने निवेदन लेके गया था, तो गुरु सर को बोला कि आप पढ़ोगे तो टाइम जाएगा, ये मैं आपको 5 मिनट में बता देता हूँ। कि एक वाक्य में बता रहा हूँ कि आप महाराष्ट्र में देखते हो शेतकरी पूरग्रस्त होते हैं, आत्महत्या करते हैं अगर सरकार ने मदद नहीं की तो। शेतकरी दुष्काळग्रस्त अगर हुए हैं तो भी आत्महत्या करते हैं, आपने मदद नहीं की तो। मैं एमआईडीसी ग्रस्त हुआ हूं, मेरी मदद करो, नहीं तो मैं मंत्रालय के सामने आमरण उपोषण करूंगा, और मेरे जीवित का कुछ भी हुआ तो आप 100% जिम्मेदार रहोगे, क्योंकि मैं आज आप तक पहुंच गया हूं। उन्होंने उनके पीएस को मेरी कहानी सुनी, देखा जेन्युइन केस थी हमारी। उनके निवतकर साहब जो पीएस थे उनको बताया कि डॉक्टर जहर जी केस 7 दिवसात कंप्लीट करा। मंत्री महोदय ने 7 दिन का टाइम दिया, तो भी 7 महीना लगा उसको कंप्लीट होने में। अंत में ओसी मिली 2007 में। हमको लगा कि अब सब परेशानियां दूर हो गई है, हमने पैसों का पेड़ लगाया है, अभी पैसों की बारिश होगी। लेकिन वास्तविकता ऐसी थी नहीं, क्योंकि किसी को औपचारिक पढ़ाई की नहीं थी इस विषय में। इंडस्ट्री के किसी को बिल्कुल इसकी चलाने की भी जानकारी नहीं थी, और फैक्ट्री लगाना और उससे चलाना 3 साल तक जो ब्रेक इवन आने के लिए जो फाइनेंशियल असिस्टेंस लगा था उसका जानकारी नहीं, तो रखेंगे कैसे। पहले 3-4 महीनों में ही सिक्योरिटी गार्ड ने रॉ मटेरियल रात में 18 लाख का रुपया लेके फरार हो गया। हमने देखा, दुख हुआ, लेकिन निश्चिंत थे। हमने सोचा कि इंश्योरेंस किया है, कल बुला लेंगे, उनको बता देंगे इंश्योरेंस में हमारा ये 18 लाख का भुगतान कर दो।
इंश्योरेंस सर्वेयर आया, एजेंट आया, उन्होंने बताया कि बिल्कुल सही है, आपकी चोरी हुई, बिल्कुल आपको मिल सकता था, लेकिन रेगुलर पॉलिसी के साथ में एक ऑप्शनल एडिशनल बर्गलरी पॉलिसी होती है जो आपने ली नहीं। आप कृपया अभी एक इंस्टॉलमेंट भर दो, अगली बार अगर ऐसा कुछ हुआ तो काम आएगी, लेकिन इस बार का भुगतान जय श्री राम। 1 साल के बाद अगस्त 2008 में रात में फैक्ट्री से फोन आया, तुरंत आओ। रात में 12-1 बजे का समय था, हम दौड़े भागे फैक्ट्री पर पहुंचे। फैक्ट्री में बड़ी ज्वाला लग रही थी, धुएं से पूरी फैक्ट्री काली हो गई थी, पूरी फैक्ट्री में आग लगकर पूरा खत्म 1 साल में। हम बड़े चिंतित हुए। अभी बोला कि अभी तो जय श्री राम, अभी तो कुछ होने वाला नहीं है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग बुझाई, लेकिन वो बुझाने के चक्कर में जो रॉ मटेरियल थे, फिनिश गुड थे, WIP में जो मटेरियल पड़ा था, पूरा गीला खराब कर दिया। काली धुएं के कारण क्लीन रूम पार्टीशन, फॉल सीलिंग, AHU सब बर्बाद। लेकिन जोश हारा नहीं, आप विश्वास करो, हमारे मित्र ने कुछ आर्थिक मदद की और गुरुवार से गुरुवार 7 दिन के अंदर दिन रात लगकर गार्बेज को हटाना, इलेक्ट्रिफिकेशन को पुनः स्थापित करना, क्लीन रूम पार्टीशन को क्लीन करना, फॉल सीलिंग को क्लीन करना, AHU को तैयारना, इससे केवल 7 दिन में हमने अपनी फैक्ट्री पुनः स्थापित की और फैक्ट्री वापस शुरू हुई। इंश्योरेंस के सर्वेयर ने आए, 3 करोड़ का नुकसान हुआ, उन्होंने माना सही है 3 करोड़ का नुकसान हुआ है, लेकिन केवल आपको 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। हमने बोला क्यों? क्योंकि आपने अपने प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन प्रॉपर ना करते हुए आधे का ही आपने इंश्योरेंस लिया है। हमने ये जो इंश्योरेंस था कि बैंक की कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए एक औपचारिकता के एक फॉर्मेलिटी समझकर उसको काफ़ी कैजुअली लिया था। एक कर लेते भाई, बैंक मांग रही है, नहीं तो लोन नहीं देंगे, उस हिसाब से। लेकिन वहाँ पर हमको सीख मिली कि किसी भी बात को गंभीरता से ले और इसके जो कंसल्टेंट एक्सपर्ट्स है उनकी राय ले। कंपनी अच्छी चलने लगी। भाग्यवश सभी फार्मा कंपनियों के एक्सपोर्टर्स के ऑफिसेस, कॉरपोरेट ऑफिसेस मुंबई में है। मुंबई से तारापुर MIDC केवल 90 किलोमीटर्स पर है, तो हमें कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर में प्राथमिकता मिलती है। प्रोडक्ट बास्केट बढ़ते गए, कस्टमर बेस बढ़ते गए, हमारा रेवेन्यू बढ़ते गया। 5 पार्टनर्स, अनबन शुरू हो गई। मेरा फैक्ट्री जाना बंद हो गया। उद्योग व्यापार धीमे धीमे कम होने लगा। आमदनी कम, खर्चा ज़्यादा। बैंक के इंस्टॉलमेंट्स, सैलरीज और क्रेडिटर्स के पेमेंट रुकने लगे, थकने लगे। और सब डायरेक्टर्स ने रिजोल्यूशन पास किया कि हम अभी इससे चिंतित हो गए, इसको हम बिक देंगे। इतने साल की मेहनत से जो खड़ा किया वो बिकने निकाला। एक महानुभाव ने पेशकश की, 8 करोड़ 11 रुपया उसका कीमत तय हुई। 11 लाख रुपया बयाना दिया जो बैंक ने तुरंत रख लिया। ड्यू डिलीजेंस 1 महीने का था, 1 महीने के बाद में 1 करोड़ रुपया देना और बाद में फॉर्मेलिटी, कागजात दस्तावेज का फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के बाद पूरी रकम आने वाली थी। इस व्यवहार के समाप्ति पर हमारी जो लायबिलिटीज थी, क्रेडिटर्स का पेमेंट देना, बैंक का देना, पूरी लायबिलिटीज समाप्त होने के बाद हमने जो लागत लगाई थी उसका सिर्फ आधा पैसा हमें मिलने वाला था। इसका मतलब आधा 50% नुकसान होना निश्चित था। फिर भी हम खुश थे, कटकट गेली। ड्यू डिलीजेंस का रिपोर्ट आया 1 महीने के बाद, वो निगेटिव था। महानुभाव आए, उन्होंने फैक्ट्री खरीदी करने के लिए मना कर दिया। हम काफ़ी उदास हुए, सब लोग को काफ़ी सदमा पहुंचा और फैक्ट्री बिक गई, ये वार्ता सब तरफ फैल गई थी। कोई भी नया खरीदार आगे आया नहीं खरीदी करने के लिए। और जब कोई चीज बिकने की मानसिकता बन जाती है तो उसे कोई भी डायरेक्टर चलाने के लिए तैयार नहीं था।
लाइबिलिटीज रोज बढ़ती जा रही थी, नुकसान रोज बढ़ते जा रहा था। मैंने शुरू में जब ये फैक्ट्री चलाई उस समय मैंने उसमें मुनाफा देखा था और मुझे पूरा विश्वास था कि यह फैक्ट्री चल सकती है अगर सुचारू रूप से चलावे। मैंने हमारे पांचों डायरेक्टर के सामने बैठकर पेशकश की, आप अगर ये फैक्ट्री को किसी और को बिकते हैं तो आपको 50% मिलेगा, मैं आपको पूरा पैसा देने को तैयार हूँ, लेकिन कंडीशन यह है कि आज मेरे पास पैसा नहीं, आप मुझे 1.5 साल का समय दो, 1.5 साल में मैं आपका पूरा पैसा चुकाने को तैयार हूँ। इससे फ़ायदा क्या होगा, आपको तो पूरा पैसा मिलेगा, बैंक की जो लाइबिलिटीज़ है, लेनदार की जो लाइबिलिटीज़ है, वो पूरी परेशानी जो आपको रोज़ फ़ोन पर जवाब देना पड़ता है उससे आप आज से इस समय से एग्रीमेंट करते ही मुक्त हो जाओगे, वो सब परेशानी मेरी। हम सब मित्र ही थे तो एक दूसरे पर विश्वास भी करते थे, तो उन्होंने यह पेशकश अच्छी समझी, हमने एग्रीमेंट किया। 2013 में उस जो फैक्ट्री डूबने वाली है, बड़ी नुकसान में है, उसके विश्वास के साथ, साहस के साथ मैं उस फैक्ट्री का 100% मालिक बना। सुबह शाम क्लिनिक चलाना, दोपहर में फैक्ट्री जाना, राजू दादा बड़े भाई सबको बोलो बाकी सब छोड़ दे, अभी तू फैक्ट्री में, हम दोनों ही देखना है। हफ्ते में 2 बार मुंबई लोकल से जाना, लोकल से आना, धक्के खा के। दोपहर का खाना नहीं था, पीना था। मैं क्लिनिक से ही फोन करके बता देता था कि मैं घर में 5 मिनट में आ रहा हूँ, क्लिनिक और घर पास में है, आप रोटी सब्जी दाल चावल, दाल ज़्यादा डालकर मिक्सर से निकाल कर एक लोटे में मेरा खाना तैयार रखो। तो मैं कई साल तक खाना पीता था दोपहर का। इस किस्म का इंटेंस हार्डवर्क करने का नतीजा ये हुआ, जो मुझे 18 महीने का समय दिया था, हमारे सभी डायरेक्टर्स का बकाया हमने केवल 6 महीनों में किया। अगले 6 महीनों में बैंक का लोन जो है वो समाप्त किया और केवल 1 वर्ष में इंपल्स फार्मा डेट फ्री कंपनी हुई। इसका मतलब कोई संस्था बेकार नहीं होती, चलाने वाले बेकार हो सकते हैं। 2014 में हमने WHO अपने कंपनी को लिया, सर्टिफाइड की। 2015 में विविध देशों के, अनेक देशों के GMP ऑडिट्स के सर्टिफाइड की हमारी कंपनी। मेरे पास 100% जो माल बनता था वो एक्सपोर्ट्स होता था, लेकिन हम डायरेक्ट एक्सपोर्ट नहीं कर रहे थे, मर्चेंट एक्सपोर्टर के माध्यम में करते थे। वापस हमारी नज़र मर्चेंट एक्सपोर्टर्स पे गई। ये भाई कहाँ जाके बिक के आता है, मैं मुनाफा कमाता हूँ, उसके ऊपर वो मुनाफा कमाता है, मैं अगर डायरेक्ट एक्सपोर्ट करूँ तो मुझे तो अधिक मुनाफा होगा। इसने मुझे डायरेक्ट एक्सपोर्ट करने के लिए प्रेरित किया। 2016 में 46 की उम्र में हमारे परिवार का एक सदस्य यानी डॉक्टर दिगंबर पहली बार प्रदेश में अपने उद्योग व्यापार के विस्तार के लिए बाहर गया। इसके पहले हमारे घर में से, हमारे परिवार से किसी भी व्यक्ति ने प्रदेश देखा नहीं था। जाना था अफ्रीका, नाइजीरिया, घर में रोना धोना शुरू हो गया। उनको किसी ने तो भी बता दिया कि नाइजीरिया राक्षस जैसे लोग रहते हैं, वहां पर जाने के बाद आदमी का सही सलामत आना बहुत मुश्किल है। मम्मी का रोज का शुरू हो गई पीछे लगना, दिगंबर तो बहुत लालची हो गया है, सब तो अच्छा चल रहा है, हमने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था इस किस्म की वास्तविकता अपनी है, तो कुछ बार भी मत जाना। मेरी फितरत कंफर्ट जोन से बाहर जाना, महत्वाकांक्षा और लालसा को बुझने नहीं देना। मैं नाइजीरिया पहुंचा, हमारी कंपनी की कई सारी प्रोडक्ट वहां मार्केट में मुझे दिखाई दी। उनको बोला मैं डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर, आई एम मैन्युफैक्चरर, फ्रॉम होम यू आर टेकिंग दिस, व्हाट इज द रेट? 50 सेंट्स, टेक इट फ्रॉम माई 48 सेंट्स। छोटी सी हल्की सी निगोशिएशन से मुझे ऑर्डर्स मिलते गए। मेरा पहला जो विदेश यात्रा थी जो उद्योग व्यापार के लिए बहुत बहुत ज्यादा सफल रही।
वो पहली यात्रा में हमने एडवांस के साथ 52 फीट कंटेनर्स की ऑर्डर लाई, जो इम्पल्स फार्मा के लिए अगले 3 महीनों का काम था। इससे इस सकारात्मक प्रतिसाद से हमें काफ़ी ऊर्जा मिली, उत्साह मिला। तो उसके बाद में कई बार प्रदेश जाना हुआ, कई देशों में हम गए। आज हम 42 कंट्रीज में अपना कारोबार करते हैं। 2013 में जो हमने फैक्ट्री ली, 2017 तक हमने उसकी कैपेसिटी 5 गुना की। 2017 से 2024 तक हमने 6 नई फैक्ट्रीज लगाई। 2030 तक हमारा सपना है कि और कई हम फैक्ट्रीज लगावे और इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड स्टैंडर्ड का हो, कैपेसिटी ऐसी हो कि उस पर्टिकुलर डोज में भारतवर्ष में सबसे बड़ी हो। एक्रेडिटेशंस में विश्व के किसी भी देश का जीएमपी इंस्पेक्शन वो पास करे, स्मूथली पास करे। अपना रेवेन्यू, ये हमारी कुछ कंपनियां हैं, फोटोग्राफ्स। इसमें जो कमला लाइफ साइंसेस लिमिटेड है, जिसने कोरोना के समय रेमडेसिविर जो कोरोना की दवा थी उसे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा मात्रा में बनाई। इसी कंपनी ने मुझे बड़ा धनवान बनाया, मैं इसी कंपनी की वजह से काफ़ी प्रसिद्ध भी हुआ। नेक्स्ट, ये हमारी ग्रुप ऑफ कंपनीज है, इसमें 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और 6 मार्केटिंग यूनिट्स है। नेक्स्ट, ये हमारे बिजनेस पार्टनर्स है, यहाँ के इंडियन मल्टीनेशनल्स के लिए हम लोग कैटर करते हैं। नेक्स्ट, ये हमारा विजन है, 2030 तक हमें अपना रेवेन्यू 2000 करोड़ का, वैल्यूएशन 10,000 करोड़ की करना है। उसे बीएससी एनएससी में मेन बोर्ड पर उसको आईपीओ लाना है। आईपीओ में जो धनराशि मिलेगी उससे एक अद्भुत, एक बड़ा यूनिक फार्मा हब बनाना है 100 एकर्स की लैंड पर। और ये अंतिम में जो लिखा है, ये मेरा सपना है कि हम, मेरे परिवार का, मेरे गांव का सबसे पहला डॉलर्स में बिलियनर बनूं। इंडियन रुपीस में बिलियनर तो हूं, लेकिन डॉलर्स में बिलियनर बनने का मेरा एक सपना है। उम्मीद करता हूं 2030 तक वो पूरा हो। नेक्स्ट, ये कुछ सोशल एक्टिविटीज हम अपने CSR फंड्स की मार्फत करते हैं। सिर्फ आपको एग्जिबिट इसलिए कर रहा हूं कि वी ऑल्सो बिलीव इन गिविंग बैक टू सोसाइटी। नेक्स्ट, ये CSR की कुछ एक्टिविटीज़ है। हाँ, अभी इस विषय पर आता हूँ कि हम लोग यहाँ पर जिस चर्चा के लिए एकत्रित हुए हैं, तो वो फार्मा मार्केट की साइज क्या है, इसमें भारत का क्या रोल है, भारत का मार्केट साइज कितना है, विश्व का मार्केट साइज कितना है। आपको बताते समय गर्व होता है कि इंडिया इज ग्लोबल फार्मेसी। हम फार्मा फॉर्मुलेशंस में अव्वल क्रमांक पर आते हैं। विश्व का 1.5 ट्रिलियन डॉलर का यह बिजनेस है। इंडियन रुपीस में बताऊं तो 120 लाख करोड़ का। भारत का बिजनेस 5 लाख करोड़ का है। 2030 तक इसका अनुमान है कि ये 10 गुना बढ़ेगा। 10 गुना मतलब 5 लाख करोड़ से 50 लाख करोड़ तक का इतना पोटेंशियल इस बिजनेस में है। भारत में जो अलग अलग प्रकार की कमोडिटीज का एक्सपोर्ट्स होता है, उन सभी कमोडिटीज में वैल्यू वाइज फार्मा कमोडिटी तृतीय क्रमांक पर आती है। हम विश्व में तीसरे क्रमांक के सबसे बड़े एक्सपोर्टर है। हम विश्व में 10वें क्रमांक के सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स वैल्यू वाइज है। नेक्स्ट, यहां पर फार्मेसी और फार्मेसी ग्रेजुएट्स छात्र बैठे हुए हैं। उनके मन में हमेशा यह डिग्री लेने के बाद आगे क्या, इसके विचार होता है। तो मुझे लगता है कि फार्मेसी ग्रेजुएट्स के लिए भारतवर्ष में अनंत अवसर उपलब्ध है। आप सर्विस सेक्टर में जा सकते हो, ट्रेडिंग सेक्टर में जा सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जा सकते हो। नेक्स्ट, एक हमेशा द्विधा रहती है कि मुझे सिक्योर जॉब करना है क्या एंटरप्रेन्योर बनना है। मैं एक एक वाक्य में आपको बताना चाहता हूं। आप अंतर्मुख होके अपने स्वयं को जानने की कोशिश करें। If you prefer
previous one. If you prefer more secure and predictable income, a traditional conventional job would be your first choice. And if you have following qualities like aspiration, passion, dedication, leadership skill, communication skill, problem solving skill, innovative, creative, growth mindset to challenge the challenges, then you are made for entrepreneurship. इसको next, इसका आगे मैं दूसरे चरण में विस्तार से बात करता हूँ. नेक्स्ट, यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है. मैं जिस फार्मेसी कॉलेज में जाता हूँ वहाँ पर इसका जिक्र करता हूँ कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट और इस्टेब्लिश्ड जो इंडस्ट्री के लोग हैं, इन्होंने एक सिनर्जी करके इकोसिस्टम डेवलप करना चाहिए, जिससे यहाँ के छात्रों को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलेगा. आपकी संस्था को 100% प्लेसमेंट का गारंटी देते आएगा और यहाँ के जो मैन्युफैक्चरर्स है उन्हें भी एक्सपीरियंस हैंड्स तुरंत उपलब्ध होंगे. तो ये एक बहुत अच्छी सोच है इकोसिस्टम डेवलप करना. शायद आप उस विषय में आगे कुछ जरूर भी करते होंगे. नेक्स्ट, यहाँ पर मेरा प्रथम चरण समाप्त होता है. मैं द्वितीय चरण में सक्सेस मंत्र पर बात करता हूँ. सफलता की जो परिभाषा मुझे समझ आती है वो आपके सामने रखना चाहता हूँ. अपना जो संकल्पित ध्येय है उसे संकल्पित समय में प्राप्त करना, अर्थार्जन के उत्तम स्रोत निर्माण करना जिससे प्रचुर मात्रा में धन प्राप्ति हो, स्वयं की, अपने परिजनों की पवित्र मंगल कामनाओं की संतुष्टि हो सके, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्राप्त करना, समाज के विधायक रचनात्मक रचनाओं में योगदान करने की क्षमता को प्राप्त करना, अपने व्यक्तित्व, चारित्र और पुरुषार्थ, अपने अभिगम के साथ शाश्वत स्वरूप में सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता को प्राप्त करना. यह मेरी सक्सेस की परिभाषा है. हम लोग समाज में देखते हैं कि कई लोग अन्य लोगों के अप्रोक्ष काफी सफल नजर आते हैं, काफी समृद्ध नजर आते हैं. तो ऐसा क्या इनकी आदतें रहेंगी या ऐसी क्या खूबियां रहेंगी जिससे ये इतने सफल बने? विश्व के अत्यंत प्रभावशाली सफल व्यक्तियों के चरित्र अगर आप पढ़ते हो तो आपको कुछ समान आदतें नजर आती है. उन सभी आदतों का यहाँ जिक्र करना संभव नहीं, लेकिन कुछ बिंदुओं को मैं यहाँ पर उजागर करना चाहता हूँ. संक्षेप में बताना चाहता हूँ कि उनकी जो आदतें थी, जो समान आदतें थी, उसे अगर हम आत्मसात करें, उसका अनुसरण करें तो सफलता हमको मिलने की संभावना बढ़ सकती है. पहला, सब लोग सुबह जल्दी उठते थे, यानी कि रात में जल्दी सोना अनिवार्य है क्योंकि 7 और 8 घंटे की निद्रा अत्यंत आवश्यक होती है. शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, आध्यात्मिक स्वास्थ्य को विकसित एवं संतुलित रखने हेतु विशेष प्रयास करने की जरूरत है. शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जिमिंग, जॉगिंग जिससे आपका फिजिकल फिटनेस रहे. बौद्धिक स्वास्थ्य के लिए अनेक किताबें पढ़ने की आवश्यकता है. किताबें वो नहीं जो फिक्शन और मनोरंजन की हो, किताबें तो वो पढ़ी जाएगी जो विश्व के प्रभावशाली अत्यंत सफल व्यक्तिमत्वों की आत्मचरित्र, जिनका हमें पठन और अध्ययन करना चाहिए, जिससे आपने मनो मस्तिष्क को वो सकारात्मक रूप में प्रभावित कर सके, अपने व्यक्तित्व और चारित्र को नया आयाम, नया दिशा दे सके. इससे आपका IQ बढ़ेगा, इंटेलिजेंट क्वोशेंट. मानसिक स्वास्थ्य के लिए आपको योग, ध्यान, धारणा, प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, जिससे आपका इमोशनल क्वोशेंट EQ बढ़ेगा.
आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए आपको अपने क्रिएटर, सुप्रीम पावर, गॉड के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। उसके लिए रोज सुबह की जो प्रार्थना होती है काफी फलदायी होती है। इससे आपका इमोशनल कोशेंट बढ़ेगा। इस सभी प्रकार के स्वास्थ्य के लिए आहार नियमन बहुत आवश्यक है। सम्यक मात्रा में सही समय पर संतुलित शाकाहार का सेवन करना, मांसाहार, नशीले पदार्थों का सेवन, परस्त्री गमन, इस किस्म के अहितकारी आदतों को उसका परहेज रखना पड़ेगा। माता पिता गुरुजन, इनके प्रति सद्भाव, इनके प्रति कृतज्ञता के साथ आपको समर्पण भावना से इनसे व्यवहार करना पड़ेगा। इन सब सद्गुणों को आपने अगर आत्मसात किया तो आपकी सफलता तुरंत क्रियान्वित हो सकती है। तो डॉक्टर जवर साहब अभी क्रियान्वित बता दो। हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड इज अ हिस्ट्री ऑफ थॉट्स। विचारों से संकल्प बनता है और संकल्प से सफलता की यात्रा शुरू होती है। आपके हृदय में एक संकल्प सुनिश्चित करो। दिन रात उस संकल्प को मनो मस्तिष्क में धारण करो, जिससे अंतर मन में उसकी एक प्रतिमा अंकित होगी। इसे हम इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग डिजायर कहते हैं। ये स्ट्रॉन्ग डिजायर get converted into your deep rooted thoughts get converted into your action makes your habits develop your nature, and this nature develops your character, मतलब चरित्र। और ये कैरेक्टर आपको एटीट्यूड यानी अभिगम देगा, और ये एटीट्यूड आपको संकल्पित लक्ष्य तक पहुंचाएगा। Please believe in law of attraction. I personally believe in it. Please believe in power of subconscious mind. I personally believe in it. Please believe in supreme power. I personally believe in it. Please take out quality time for prayers. मैं स्वयं प्रतिदिन 3 घंटा ईश्वर की आराधना करता हूँ। स्पेशली डिफिकल्टीज टाइम में आपको आपका मोरल बूस्ट करने के लिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए इसकी काफ़ी सहायता होगी, और आप में एक अद्भुत प्रकार का आत्मविश्वास जागेगा, जिससे आपको अंतर मन में लगेगा कि मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। एक शेर सटीक बैठेगा, फानुस बन के हिफाजत जिसकी हवा खुद करे, वो शमा क्या बुझेगी जिसे रोशन खुदा करे। Please remember, you born poor is not your fault, but if you die poor is definitely your fault. Please remember, thinking or dreaming low is a crime. HDFC बैंक के चेयरमैन दीपक जी पारिक हमेशा कहते हैं, वो T20 क्रिकेट मैच का उदाहरण देते हैं। 20 overs, 120 balls, target is 720 runs. Means every बॉल 6 रन्स। तो अपना लक्ष्य ऊंचा रखो, अपनी पॉसिबिलिटीज, कैपेबिलिटीज को, अपने इंटरेस्ट, अपना पैशन को ध्यान में रखो। ऑफ कोर्स अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को भी अपनों देखना है। आपने अपना लक्ष्य तय करने के बाद उसकी औपचारिक शिक्षा प्राप्त करनी है, मतलब क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि ऑप्टिमम एजुकेशन इज मस्ट एंड इनफ। प्लीज डोंट रश बिहाइंड कलेक्टिंग मेनी सर्टिफिकेट, मेनी डिग्रीज। इट विल जस्ट वेस्ट योर working span of your precious life. Take optimum education. If you want to be academician, then go on collecting degrees, certificate, PhDs. आप एजुकेशन लो, कॉलेज में जाना बंद करो, लेकिन सीखना बंद मत करो। कंटिन्यू लर्निंग।
एक बार आप क्वालिफाइड हो जाओ तो आपको उसी क्षेत्र के अच्छी कंपनी में शामिल हो जाओ, जॉब करना शुरू करो, जिससे आपको एक्सपीरियंस आएगा। उसी संस्था में कई सालों तक आप काम करते रहोगे तो आपको एक्सपर्टीज मिलेगी। क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज के साथ में आपको नॉलेज, विजडम और सेल्फ कॉन्फिडेंस बनेगा। यहां पर दो विकल्प निकलेंगे। जिनको सिक्योर जॉब करना है जीवन में, उनको यहीं पर कंटिन्यू करते रहना है। आप ऑफिसर से एग्जीक्यूटिव बनोगे, एग्जीक्यूटिव से मैनेजर बनोगे, मैनेजर से जनरल मैनेजर बनोगे, वाइस प्रेसिडेंट बनोगे, प्रेसिडेंट बनोगे, सीईओ बनेंगे। आप वहीं पर रहो, साल दर साल आपका होदा बढ़ते जाएगा, आपकी आमदनी बढ़ती जाएगी। लेकिन जिन्हें एंटरप्रेन्योर बनना है, वंस यू गेन knowledge, wisdom and self confidence, this is the right time to quit from job and to start our own. शुरुआत में बेबी स्टेप्स लो, उसी फील्ड का ट्रेडिंग शुरू करो, अपना प्रोडक्ट बास्केट बनाओ, कस्टमर बेस बढ़ाओ, कुछ यूएसपी प्रोडक्ट डेवलप करो जिससे आपका एक रिकग्निशन मिले। यंग, इंथुसियास्टिक, टैलेंटेड टीम तैयार करो, एक वर्क कल्चर डेवलप करो। इससे आपका उद्योग व्यापार विस्तारित होगा। जिस समय आपको लगा कि मैंने अभी इस क्षेत्र में साइजेबल मार्केट तैयार किया है, प्लीज दैट इज द राइट टाइम टू पुश योरसेल्फ टू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। यहां पर भी आप बेबी स्टेप्स लो, स्टार्ट विथ स्मॉल स्केल। जब आपको आत्मविश्वास बढ़ेगा तो आपकी इंडस्ट्री को स्केल अप करो। रिमेंबर ऑलवेज, योर अल्टीमेट एम शॉल टू बी to put factory, industry, manufacturing plant. World history says the economical revolution is 100% based on industrial revolution. आपको जब पूरा आत्मविश्वास आएगा तो आप ने एक बड़ा ऑडिटेबल वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डालना है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन को लाना है, अपनी टीम बहुत अच्छी तरह से तैयार करनी है। R&D, यू पुट R&D इन प्लेस। आपका जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी क्वालिटी जो इनोवेटर के साथ अपनी क्वालिटी को मैच करना है। प्लीज ब्रिंग एथिक्स, मोरल, डिसिप्लिन, प्रिंसिपल्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअलिटी टू योर बिजनेस। दिस विल डेफिनेटली गिव यू ग्रोथ, प्रोग्रेस एंड सक्सेस विथ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। ये सब सुनने को बहुत अच्छा और आसान लगता है, लेकिन मुझे बताना पड़ेगा कि entrepreneur's journey is very, very tough. You are bound to face setbacks, failures, obstacles. Alibaba.com के founder chairman Mr. Jack Ma says, in entrepreneur life, today is bad, tomorrow is worst, but day after tomorrow is beautiful. But the irony is that most of the entrepreneur dies next day evening. They don't exist to see the beautiful day after tomorrow. So please don't give up. Failure is failure if you give up. Please trust in your goal, trust in the path, the roadmap which you have chalked with the help of experts. Trust in your capabilities or continue perseverance. Success is yours. इस प्रकार के काम करने से आपको सफलता जरूर मिलेगी। भविष्य में आपको सफलता मिली तो आपकी मनोधारणा कैसी चाहिए? कृपया सफलता का श्रेय स्वयं के पुरुषार्थों का ना दे, उसको ईश्वर को समर्पित करें। आपने ऐसा सोचना है कि ईश्वर ने आपको इस विशेष कार्य के लिए चुना है। आपने जो धन प्राप्त किया है उसका विनियोग, निवेश उसकी मर्जी से विश्वस्त बन के करे, ना कि मालिक बन के करे। आपके सफलता में अनेक अनेक विभूतियों का, महानुभावों का आशीर्वाद एवं प्रत्यक्ष रूप अप्रत्यक्ष रूप में योगदान होता है। इसे निरंतर स्मरण में रखें। इससे फायदा क्या होगा? जो आपने सफलता प्राप्त की है, धन प्राप्त किया, वो आपके सर चढ़ बोलेगा नहीं, आपके पैर निरंतर जमीन पर टिके रहेंगे।
आपके आचरण में सात्विकता और सादगी आएगी, जिससे आप समाज में मान सम्मान, विशेष मान सम्मान के लिए प्राप्त होगे। एक बार आपको सफलता मिली तो आपको अपने जिम्मेदारियों का भी स्मरण करना चाहिए। प्रथम चरण की सफलता मिलते ही अपने परिजनों के उत्थान के लिए काम करना चाहिए। आप सब लोग जानते हैं कि अपने फैमिली में माता पिता के पास पैसा नहीं, तो 2 बच्चों में से एक बच्चे को लिखा पढ़ा कर बड़ा करते हैं। छोटा का बलिदान होता है, उसे पढ़ाई करने से मुक्त रहने के कारण वो पढ़ाई कर नहीं सकता, उत्कर्ष नहीं कर सकता, सफलता नहीं पा सकता। इसको स्मरण रखते हुए अपने परिजनों के उत्थान के लिए अपने को काम करना चाहिए। दूसरे चरण की जब आपको सफलता प्राप्त होगी तो अपने समाज के उत्थान के लिए काम करना चाहिए। तीसरे चरण की सफलता प्राप्त होगी, अपने राष्ट्र के उत्थान के लिए काम करना चाहिए। राष्ट्र उत्थान के विषय में आपके सामने 2 शब्द रखना चाहूँगा। यहाँ पर जो छात्र उपस्थित है, उनके अभिभावक भी उपस्थित है कि मुझे मालूम नहीं, गुरुजन उपस्थित है। आप सबसे निवेदन है कि इन मेधावी छात्रों को परदेश जाके विद्यार्जन, नौकरी एवं उद्योग व्यापार करने की, यानी कि करियर ढूंढने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। अगर इनके दिमाग में यह कोई सपना सृजित होता होगा तो उसे रोके, क्योंकि भारतवर्ष बड़ी तेजी के साथ, बड़े गति के साथ विकसित हो रहा है। 2047 आप लिख लो, ये एक विकसित देश, दुनिया की महासत्ता, वर्ल्ड लीडर बनने जा रहा है। – 2015 में अपनी अर्थव्यवस्था 10 क्रमांक की थी, केवल 8 वर्ष में वो 5वें क्रमांक की बड़ी अर्थव्यवस्था है। $4 ट्रिलियन USD GDP। इसी वर्ष के अंत तक, दिसंबर तक, हम 4th क्रमांक की अर्थव्यवस्था होगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमने यूके, जर्मनी, रशिया, फ्रांस जैसी बड़ी महासत्ताओं को पीछे ढकेला है। 2030 तक आप 3य क्रमांक की अर्थव्यवस्था होगी, 2040 तक आप 2य क्रमांक की बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। 2047 में जब हम स्वतंत्रता का शताब्दी बड़े उत्साह से मनाते रहेंगे, उस समय अपना भारतवर्ष विश्व में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में निखर आएगा। यहां अनंत विकल्प, अनंत अवसर आपको नौकरी के, उद्योग व्यापार के उपलब्ध होने जा रहे हैं। भारत में रहने वालों के और भारतवर्ष के भविष्य अत्यंत उज्जवल है। युवाओं को कहना चाहूंगा कि आज स्वतंत्रता के समय जैसा बलिदान देना पड़ता था, आज बलिदान की नहीं, योगदान की आवश्यकता है। हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझकर उसे सुचारू रूप से निर्वहन करना है, जिससे अपने भारत का उत्थान हो। भारत की महासत्ता बनना निश्चित है। आपके साथ, आपके बगैर यह विचार आपके लिए मंथन के लिए छोड़कर मेरा वक्तव्य 1 मिनट में समाप्त करता हूं। जिस अभिगम के साथ, जिस आविर्भाव के साथ मैं आपके सामने प्रत्यक्ष खड़ा हूं, मेरे व्यक्तित्व चारित्र को, मेरे कर्तृत्व दातृत्व को, मेरे नेतृत्व वक्तृत्व को जिन्होंने नई दिशा दी, आयाम दिया, उन सभी विभूतियों का मैं आज कृतज्ञता प्रकट करना चाहता हूँ। इस श्रृंखला में सबसे प्रथम हमारे भगवान दत्तात्रेय आते हैं, उनका पूरा परिवार आता है। उनका परिवार मतलब श्रीपाद, श्री वल्लभ, श्रीमन नृसिंह सरस्वती स्वामी महाराज, श्री स्वामी समर्थ। इनकी असीम कृपा से हमारा पूरा परिवार सुरक्षित है और प्रगति पथ पर है। आगे हमारे स्वर्गस्थ नानाजी, नानी जी, रामनाथ जी, पिकुलाल जी दूत, कमलाबाई दूत, इन्होंने हमें धार्मिक आध्यात्मिक संस्कार दिए। आगे स्वर्गस्थ हमारे पिताजी, जो मेरे पूरे विश्व में सबसे बड़े समर्थक और प्रशंसक रहे। हमारी माताजी 76 साल की उम्र में केवल पिछले 35 साल में साबूदाना खिचड़ी पर है, रोटी सब्जी दाल चावल का त्याग किया हुआ है। वो संन्यास्त जीवन जीकर हमें अविरत आशीर्वाद दे रही है। मेरे बड़े भ्राता राजू दादा, जो मेरे सबसे प्रमुख
सलाहकार है। अंत में अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति जो मेरे जीवन में है, मेरी धर्मपत्नी पतिव्रता सुयोगिता। इन सभी लोगों का स्नेह आशीर्वाद मैं आजीवन याद रखूंगा। इन सभी को अनेक अनेक प्रणाम। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का यह मेरा वक्तव्य छात्राओं के लिए विशेष कर आपके जीवन में नई ऊर्जा लाए। आप अपने जीवन में प्रतिदिन नई सफलता की नई ऊंचाई हासिल करें। आप स्वयं का नाम, परिवार का नाम, समाज का नाम, राष्ट्र का नाम रोशन करें। आपने पुरुषार्थ का ऐसा परिचय दे कि इतिहास भी आपने एक पन्ना सुरक्षित रखे और उस पन्ने को आपको व्यक्तित्व चरित्र से रंगीन करना है। मैं जब पैदा हुआ जग हंसे मैं रोया, करनी कर चलो ऐसी मैं हंसू जग रोए। बड़ी शिद्दत से किरदार अपना निभाओ ऐसे कि पर्दा गिरने पर भी तालियां बजती रहे। मंगल कामनाओं के साथ, आपकी जोरदार तालियों के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।